Subhranu, good afternoon. Animesh, good afternoon. Namaskar, Jidia. Archit, good afternoon. Sarat, good afternoon. Pranam, Vikash Beta. Adil, good afternoon. Sandeep, good afternoon. You too, good afternoon. अभी करवा ऐसा हो नहीं सकता. So we talked about the regulated power supply. In the regulated power supply, there were a lot of stages basically to get, to achieve AC, DC from the AC. So a lot of stages were connected in between for that particular process. So then we said that we will be studying all these stages one by one. So we started with the first stage, that is transformer, very short one. We finished it very quickly. Then we moved on to the second stage. The second stage was rectifier. And then we started studying rectifier. In the rectifier, we said what is a rectifier? Basically converts a bidirectional signal into a unidirectional signal, or a pure AC to a pulsating DC, or which provides high resistance to the flow of the current in one direction, low resistance to the flow of the current in one direction, and a high resistance in the opposite direction. Any good afternoon, Vita. So that was a rectifier. Then we talked about that what kind of rectifiers we have. We have a low voltage rectifier, we have a high voltage rectifier. High voltage rectifier we will not be studying, that's a part of the power electronics. We will be restricting ourselves to low voltage rectifier. In the low voltage rectifier, we have two types of rectifier, that is a half wave rectifier and a full wave rectifier. Full wave rectifier is further of two types, center tapped and bridge rectifiers. So we're going to talk about all these things. So first we will be starting with the half wave rectifier. We will be talking about half wave rectifier. It will take at least 2 classes to finish. So let's start with that. Rudra, good afternoon. Good afternoon, Shan. Sir, ji, aapka health kaisa? Mera health अच्छा है बेटा. Thank you. We're starting with the half wave rectifier. So let's put the heading as half wave rectifier. Deepa, good afternoon. Good afternoon, Yuvraj. ये AC इनपुट सप्लाई है बेटा. ये मैंने AC इनपुट सप्लाई लगाई किसके साथ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ. वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट RMS. एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज. ठीक है. तो ये मैंने कनेक्ट किया AC सप्लाई जो सॉकेट से आ रही थी. ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया. स्टेप डाउन करने के बाद अब मेरा लगा रेक्टिफायर. A simple diode which is providing low resistance to the flow of the current in one direction and a high resistance to the flow of the current in the opposite direction. So I have a rectifier. I have a rectifier over here and a load across which I'll be getting my output. हमने कहा था ना इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द लोड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वांट टू चेक द वोल्टेज. कल जो पहला पॉइंट था. ठीक है. शिवा, गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. ठीक है. यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? नॉर्मल, सिंपल, इजी. ठीक है. Now let's say the voltage that I'm getting at the secondary is Vs.
Voltage as the primary, we call it as VP or V1. Voltage as the secondary, we call VS or V2. I'm calling this as V input. Sir, why V input should be here, isn't it? No, it's okay. But for the rectified circuit, this is the V input, isn't it? Because this is the voltage which is going to get rectified. So I'm calling it as V input because for my analysis, this is the input now. So what's the problem in that? Okay, clear? Clear? So what is V input? V input is the stepped down. देखना स्टेप में डबल पी आता है कि सिंगल पी आता है, मुझे कैमरा आजकल डाउट हो जाता है। आजकल क्या है ना, इंग्लिश से बिल्कुल नाता छूट गया है ना, कहीं नॉवल पढ़ रहे हैं ना कुछ पढ़ रहे हैं। देखना स्टेप में डबल पी है सिंगल पी, आई थिंक डबल पी होगा। स्टेप डाउन प्योर एसी डबल पी है, ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून लोकेश, गुड आफ्टरनून। स्टेप डाउन प्योर एसी एंड कितना होगा यार वी आई, कैन एनीबॉडी टेल मी? दिस वाज एन एसी वोल्टेज, दिस वाज एन एसी वोल्टेज। व्हेन आई स्टेप्ड इट डाउन आई विल गेट अगेन सम एसी वोल्टेज, लेट्स से आई एम गेटिंग वीएम sin ओमेगा टी, है ना? यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी, लेट्स कॉल इट विल बी सम, दिस वाज एसी, I stepped it down. Again, I'm going to get AC. I'm saying that whatever AC that I'll be getting at the secondary, its peak value will be Vm and sin of omega t. Okay. I'm calling it as Vm sin alpha. ये alpha कहाँ से आया सर? बेटा मैंने ओमेगा टी को अल्फा लिखा because when I will be doing the plotting, every time on the axis I'll have to write omega t. Every time for the calculation I have to carry omega t. So I know that I'll have to write omega t a lot of times. So I said omega t, at the end of the day omega t is an angle. I called it as alpha. I called it as alpha just to make my life easier. But sir, I don't want to write it. It's okay. You keep on writing omega t. You will still get the same result. You will still get the same result. What I have plotted over here is, this is input voltage with respect to alpha. ओमेगा टी ना, ओमेगा टी को मैंने अल्फा लिख दिया so that it becomes easy for me ना. ओके, इसीलिए मैंने अल्फा लिया है. तो ये मैंने प्लॉट किया है. You can see this is 0, this will be pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, so on. The peak value here, it is Vm. The negative maxima is minus Vm. चलिए, यहां तक समझ में आ गया. वेवफॉर्म बनाई बस मैंने, इनपुट की. दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म दैट आई हैव. नाउ लेट्स डू द एनालिसिस. केस 1.
बिकॉज आपको पता है साइनसॉइडल लगा हुआ है, तो एक हाफ साइकिल के लिए डायोड का बिहेवियर डिफरेंट होगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए डायोड का बिहेवियर डिफरेंट होगा. वी ऑलरेडी नो दैट. So let's do the analysis. Case 1, I'm doing the analysis when alpha is from 0 to pi. Okay? We are doing the analysis when alpha is from 0 to pi. When alpha is from 0 to pi, you can see V input will be positive. This input voltage is positive. So if input voltage is positive, so the P side voltage or the anode side voltage will be greater than the cathode side voltage. The diode will be forward biased, that is the diode will be on. So V input positive, so I can say that diode is forward biased. Diode is forward biased, that is diode is on. Okay, so बना दो ये डायोड को ऑन कर दो. बस मैंने सेकेंडरी साइड बनाई है. दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL. सेकेंडरी पे वोल्टेज V इनपुट है. डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है. आई एम टेकिंग एन, देखो दूसरी चीज मेरी बात समझना बेटा, मैं आपको डायोड ये जो पूरा है ना बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, एक एक स्टेप कर करके बिल्ड करूंगा. So please try to learn it conceptually because the reason is very simple. The chances of a question getting from a rectifier in the gate exam are very less. But you never know when they're gonna ask something. Okay, but the chances are very less. In engineering services, of course, they can ask questions from this. But if in case somehow they ask the question in the gate or engineering services, and they say that diode has a forward resistance of this much and cut-in voltage of this much, what will I do? Because I did everything. I did the analysis only for the, this ideal case. I did the analysis for the ideal case. But now he has given a practical diode in the examination. What will I do? हिमांशु बेटा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी तो यही कोर्स है. इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों का कॉमन है. इलेक्ट्रिकल में थोड़े से टॉपिक कम है. जहां तक आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली एंड इन ग्रेट डिटेल. ओके, तो प्लीज समझ के चीजें एनालाइज करना. फॉर एग्जांपल, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कहता कि डायोड की कटिंग वोल्टेज वी गामा है, तो यहां मैं वी गामा बना के एनालिसिस कर लेता. वो बोलता RF और वी गामा है, तो मैं PWL मॉडल लगा के कर लेता. सो समझ के करना चीजें, बिकॉज कोई पता नहीं वहां पे वैल्यूज चेंज हो जाए, वो कुछ और दे दे डायोड में इंफॉर्मेशन. ओके, सो नाउ V input RL, the voltage here, it is V output, and the current is I. यहां पे मैंने ये नहीं बनाया, इसको रेफरेंस मार्क कर देते. ठीक है, जस्ट मार्केट की रेफरेंस है नेगेटिव साइड के लिए. तो this is what we have. So what will be the output voltage? The output voltage will be approximately equal to the input voltage. Okay, so when alpha is 0 to pi, output voltage and input voltage is same. Output और input same है, बना देते हैं यार. लो भाई, output and input same. This is what we are plotting. We are plotting output with respect to alpha. So for this region, output is equal to कौन सा कलर ले सकते हैं, ब्लू लेते हैं. Input, output is equal to input. Let's go for the next region, that is from pi to 2 pi. Case 2, when alpha is between pi to 2 pi, at that time you can see V input is negative. If V input is negative, our diode is reverse bias. अब देख सकते हैं V input नेगेटिव हो गया.
अगर V इनपुट नेगेटिव है तो एनोड साइड की वोल्टेज कैथोड साइड की वोल्टेज से कम है क्योंकि नेगेटिव है, तो एनोड साइड की कैथोड साइड से कम है, तो ये रिवर्स बायस्ड है, इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट. Diode is reverse biased, that is diode is off. Off है, so it will be replaced by an open circuit. तो भाई डायोड को ओपन कर देते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हैं डायोड ओपन हो गया, सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी, करंट कोई फ्लो करेगी नहीं, वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0. सो इसके लिए वी आउटपुट मेरा 0 आ गया. फिर रिपीट, तो एक हाथ से बनाया हुआ है, फिर 0, फिर repeat, and the process will continue, and the process will continue. So V input 0, V input 0, and so and so. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ऑपरेशन क्या है इसका? And now you can see ये हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि आधी वेव रेक्टिफाई हुई है. This is half wave rectification. That's why it is called as half wave rectifier. Half wave rectifier. Sir, what if V gamma was there? What if RF was there? तो ये आगे चल के मैं अभी एनालिसिस करूंगा इस हाफ वेव रेक्टिफायर का. मेन तो एनालिसिस है, पूरा एनालिसिस करूंगा इसका मैं. तो एनालिसिस करते हुए जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आगे चल के मैं बीच में वी गामा भी लूंगा, मैं बीच में आरएफ भी लूंगा, बीच में आरएसडब्ल्यू भी लूंगा. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर यहाँ पे होता तो ये कैसे ऐसे वेव फॉर्म आती है, ऐसे करके तो क्यों आती है, ऐसे भी समझ में आ जाएगा आगे चल के. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बिल्ड करेंगे. बट दिस वाज द ऑपरेशन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर. सो फॉर आइडियल केस व्हाई डिड वी टेक V नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Y नॉट इक्वल? इट इज इक्वल ओनली यार, इट इज इक्वल ओनली. जस्ट अ habit that if in case some resistance is there for this, just a habit, because chalo chodo means this just a habit, that's why I have done that. Secondary can also have some resistance. मैं जाना नहीं चाहता अभी इतने में, क्यों लेके जा रहे हो मुझे. If secondary is also having some resistance, so resistance of the secondary winding upon RL, this will be the current into RL, this will be the output voltage will be there. So I have assumed secondary resistance to also be 0. Although diode I have taken ideal, but I have not talked about the secondary resistance also. So I have said approximately VI. I have said approximately VI. Otherwise, if you want to write equal to VI, of course you can write that. बाल की खाल खींचने वाली बात कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं है. This doubt has nothing but वो ये ना, मतलब just to create a doubt out of nowhere. चलिए आगे चलते हैं. So now we are starting with the analysis of the half wave rectifier. In foreign author books, you will find very less information about the rectifiers. Foreign author के बुक से रेक्टिफायर पढ़ोगे तो गारंटीड फेल हो जाओगे इंजीनियरिंग सर्विसेज से. ठीक है, so let's have a look. The first thing that we will be starting with is the instantaneous output current I. सबसे पहला क्या है, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट I. तो हम लोग ये जो है इसको कैलकुलेट करेंगे. तो आपको पता है कि जब भी मुझे एनालिसिस करना होगा, आई हैव टू डू द एनालिसिस इन द in both the cycles separately, So first I'll be going for the positive half cycle, that is alpha is from 0 to pi. Alpha is from 0 to pi. Secondary and input voltage. Now I am replacing the diode by the forward resistance RF. Sir, I want to write V gamma also. Of course, write it down. मैंने मना नहीं किया है.
मैं तुम्हें बस चीजें सिखा रहा हूं, कभी मैं आरएफ ले लूंगा, कभी मैं वी गामा ले लूंगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, मैं तभी तुम्हें डेरिवेशन सिखा रहा हूं, अदरवाइज तो क्या फर्क पड़ता है, मैं सीधा आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, टक 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 टक, काम खत्म, है ना। लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दे रहा हूं एक एक चीज, ये इसीलिए कि एक बार सीख लो, पूरी जिंदगी के लिए आ गया। मैंने अगर शॉर्टकट मार दिया तो फिर तुम्हारा गया टॉपिक हमेशा के लिए, इसलिए समझ के करना जो मैं चीजें कर रहा हूं, ठीक है। RF, then RL, this is V output, and the current flowing from here will be the instantaneous current. Okay, what will be the current flowing through the circuit, I, or the load, instantaneous current? It will be V input upon RF plus RL. If you want secondary winding resistance, write it down over here. मतलब जो आएगा वो accordingly लिख लेना, because just a network circuit, it's a normal network circuit. Okay, so instantaneous current will be this voltage, which is the input voltage appearing at the secondary, because secondary will be acting as a source for this load now, upon RF plus RL will be the current flowing through it. Now, what is V input? We know that V input is Vm sin alpha, where alpha is omega t. याद रखना, मैंने वैसे ही लिखा हुआ है अल्फा अपने लिए मतलब एग्जाम में भी लिखना है तुम्हें, ऐसा नहीं है, एग्जाम में भी लिखो इसको, इट बिकम्स इजी। RF plus RL. So finally current, the instantaneous current flowing through the load, or because इसमें तो एक ही सर्किट है, it is Im sin alpha, where Im is equal to Vm upon RF plus RL, and this is the peak value of current. क्लियर हो गया यहां तक? इजी इजी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास Im निकल के आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहां तक हमने निकाल लिया। सेकंड, अब अल्फा पाई से 2 पाई है, तब क्या होगा? अगर अल्फा बेटा पाई से 2 पाई होगा तो आपको पता है कि डायोड कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट एक्ट करेगा। डायोड अगर ओपन सर्किट एक्ट करेगा तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन obviously it will means it will be reverse bias, so it will act as an open circuit, so it will be replaced by an open circuit. तो ये ओपन सर्किट हो गया, काम खत्म हो गया, रिवर्स में कुछ करंट फ्लो नहीं करेगी। अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर व्हाट अबाउट रिवर्स सैचुरेशन करंट? रिवर्स सैचुरेशन करंट विल फ्लो, दैट विल बी वेरी स्मॉल करंट, नैनो एम्पियर, वी नेग्लेक्ट दैट. Sir, what if they provide you the reverse saturation current in the examination? I don't think in the analog electronic circuits they're gonna provide you anything like this. Maybe in EDC they can do so, but in analog electronics they're never gonna do so. So what if, है ना? So what if they provide you, then right, take that into consideration also in the reverse direction. Then take that into consideration. Then I will be some value in the reverse direction also, but they will not give you reverse saturation current in the analog electronics. Okay, so we take it as 0. बट फिर भी जिनकी भावनाएं होती है उनके लिए मैं हमेशा लिख देता हूं, इन दिस सिचुएशन डायोड इट विल बी ओपन सर्किट और रिवर्स बायस्ड, एंड in reverse bias condition diode passes reverse saturation current which is negligible, that is 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 approximately 0. लो भाई लिख दिया आप लोगों के लिए। Therefore the instantaneous current, ठीक है, this is which we are calculating, the instantaneous current through the load will be Im sin alpha when alpha is from 0 to pi, and 0 when alpha is from pi to 2 pi.
क्लियर है? क्लियर है? देखो अभी बहुत चलने वाला है बोरिंग, ठीक है? अभी तुम लोग तंग पड़ जाओगे, इतने पॉइंट्स करने हैं आज, सब बोरिंग चलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीजें बोरिंग है, लेकिन हमें करनी है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अरे मैं कह रहा हूँ बोरिंग, मैं जब मैं खुद बोल रहा हूँ बोरिंग है तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, ट्रस्ट मी. So if I want to make the topic interesting, I should have straightforward started with the clippers, clampers, and all those things. You must have been very happy, and then I should have come back to this thing. But that will be changing the order of the subject. I don't want to do that with you people. And just for the sake of your happiness and your enjoyment, I shouldn't be doing that with you. So I know it's boring, but I'll try my level best to explain you everything and make you learn the subject in a proper manner. So have patience, because life is not always roses, है ना? So ठीक है, कभी कभार परेशानियां भी जीवन में आती है, झेलनी पड़ती है. बाकी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. देखो अगर मैं सीधा लिखने लग जाऊंगा ना, रट्टा मरवाने लग जाऊंगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी. बट मैं एक भी चीज तुम्हें क्रैम नहीं करवाऊंगा. आई विल सॉल्व एवरी सिंगल थिंग. आई विल सॉल्व एवरी सिंगल थिंग फॉर यू पीपल, सो दैट यू हैव अ फ्लो ऑफ द टॉपिक एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. बट हाँ, बोरिंग तो है, मैथ्स चलने वाला है. सिंपल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, मैथ्स आएगा. पावर इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो है ये. चलिए, अब हमने पहले क्या निकाला? लोड में इंस्टेंटेनियस करंट निकाल ली. मैंने कहा ये तो पता लग गया कि इंस्टेंटेनियस करंट कितनी गई लोड में. सर डीसी करंट भी निकाल ले, लोड में कितनी जा रही है निकाल लेते हैं. सर आरएमएस भी निकाल लेते हैं. फ्लो समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं? पहले लोड की करंट निकाल ली, अब करंट में डीसी और एसी डीसी और आरएमएस दोनों निकालने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, लेट्स गो विद दैट. सेकंड, डीसी output current, that is IDC. क्या हो गया ये? what this will be? Average value. You know that आपको एवरेज वैल्यू डीसी जो है वैल्यू देती है. एवरेज वैल्यू इज द डीसी वैल्यू. पढ़ा हुआ नेटवर्क में यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. पता है? नहीं पता तो पता लग गया अभी, ठीक है. एवरेज वैल्यू निकालेंगे, सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा, बिल्कुल सही बात है फैज. एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो डीसी वैल्यू मिल जाएगी. चलो, सो आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डीसी वैल्यू व्हिच इज आल्सो द एवरेज वैल्यू. ऑल्दो आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग इसकी एवरेज वैल्यू im/2, खत्म बात. im/पाई एवरेज निकाल रहे हैं, im/पाई खत्म बात. लेकिन अब नए बच्चे बैठे हैं, फिर बोलेंगे रट्टा मरवा दिया, तो मैं निकाल देता हूं, अदरवाइज आई नेवर कैलकुलेट दीस थिंग्स. एवरेज क्या होता है? 1/t इंटीग्रल 0 to t I of t dt. This is the formula for the average value. ठीक है. So now you can see this can be further written as the time period, it is 2 pi, because now I am in terms of angle. Integration 0 to 2 pi. Instantaneous current, instead of dt I'll be writing d alpha. याद है आपको d omega t की टर्म में मैंने बताया था पाई लिखते हैं, नेटवर्क में सिखाया हुआ सब कुछ. d alpha. So this can be further written as 1/2 pi. I'm splitting the limit of integration because instantaneous current is different from 0 to pi. And it is different from pi to 2 pi. ठीक है, इंटीग्रेशन तो आई होप आती होगी. ब्रैकेट को एक्सपैंड किया, ये तो खत्म हो गया. आई एम बाहर आया इंटीग्रेशन से, im/2 पाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉस अल्फा लिमिट्स पाई से 0. ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा आया, माइनस से मैंने लिमिट पलट दी, पाई को नीचे लिख दिया, 0 को ऊपर लिख दिया. दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज im/2 पाई अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई -1. 2 कट गया, hence the DC output current is im/pi. वैसे भी बेटा आप देख सकते थे कि जो मेरी आउटपुट इंस्टेंटेनियस करंट है वो हाफ वेव साइनसॉइड है, और हाफ वेव साइनसॉइड जो है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनसॉइड जो है, उसकी आरएमएस वैल्यू im/2 होती है, एवरेज वैल्यू im/pi होती है.
तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, पर नए बच्चे इनके लिए मैंने प्रॉपरली करके दे दिया कि इसकी एवरेज वैल्यू आई एम बाई पाई निकल के आएगी। अदरवाइज ये आपको सब कुछ याद करना है बाद में कि हाफ वेव रेक्टिफाइड, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, साउटूथ वेवफॉर्म, क्या क्या रहता है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब जो लोड करंट आई है इसकी आरएमएस वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू आएगी आई एम बाई 2, पर फिर भी मैं फॉर्मूला लगा के कर देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा, इसी बार कर रहा हूं, सिर्फ फुल वेव में नहीं करूंगा पूरा। आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू अंडर, ज्यादा ही बड़ा हो गया, बाद में लगा लेते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई, लिमिट स्प्लिट करेंगे, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा डी एल्फा, और आगे पाई टू 2 पाई 0 है तो इस बार मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टूड है, पिछली बार का समझा दिया हुआ है। सो 1/2 पाई 0 to पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा डी एल्फा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज आई एम स्क्वायर, खींचो बाहर, बाहर आ गया आई एम अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा divided by 2 sin square theta d alpha. This can be further written as im under root of, ये 2 बाहर लाओ, 1/4 पाई, ये 2 कट गया, डी अल्फा, अल्फा आया, लिमिट्स 0 to पाई माइनस cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, 2 अल्फा का 2 0 to पाई। This can be further written as im under root of 1/4 पाई अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0, इसका 0 0, ठीक है ना, 0 0 आ गया, खत्म हो गया, ये पाई पाई कट गया, 1/2। सो यू कैन सी आई आर एम एस इज कमिंग एज आई एम बाई। तो ये आपको ऑलरेडी पता था, हाफ वेव रेक्टिफाइड जो साइनोसाइड होता है उसकी आरएमएस वैल्यू आई एम बाई 2 होती है, उसकी आरएमएस वैल्यू आई एम बाई 2 होती है। गुड आफ्टरनून रामांशु, गुड आफ्टरनून। शोर तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? शोर आ रहा है कोई? सही है, सही है। एक्चुअली नेबर्स का शायद पानी खत्म हो गया है, तो पानी का टैंकर मंगवाया उन लोगों ने, तो वो एकदम होता है पानी की टैंकर को आवाज आती है, वो मोटर जब चलती है उसकी, तो वो आ रही है, बट ऑल्दो साउंड प्रूफिंग है, रूम की पूरी साउंड प्रूफिंग करवाई हुई है, फिर भी बाहर से हल्की हल्की आवाज आ रही है, पर हैप्पी कि आप लोगों को नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट भी निकल गया, तो हमने क्या निकाल लिया? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और लोड करंट, डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और लोड करंट। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम क्या निकाल रहे हैं? अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, ऑब्वियसली इन द लोड करंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है, अभी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। आई आर एम एस डैश
क्या क्या मतलब अभी तो निकाली आरएमएस वैल्यू? नहीं, अभी मैंने आरएमएस वैल्यू किसकी निकाली? लोड करंट की। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी मैंने आरएमएस वैल्यू किसकी निकाली? लोड करंट की। जो लोड है उसकी करंट जो है उसकी आरएमएस वैल्यू निकाली। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो लोड करंट है उसमें डीसी और एसी दोनों है, जो सिर्फ एसी पोर्शन है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। अंतर समझ में आया दोनों में? सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हुआ? गुड। मैं लिख देता हूं ताकि कभी आप रिवीजन करें बाद में तो आपको समझ में आ जाए क्या था ये। आउटपुट करंट of rectifier consists of both AC and DC component as it is pulsating DC। तो ये जो AC कंपोनेंट है, इस AC कंपोनेंट की मैं RMS वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, दैट इज द टोटल लोड करंट is equal to I dash, that is AC component, plus IDC, that is DC component। क्लियर हो गया? सो आप यहां से देख सकते हैं बेटा, AC कंपोनेंट क्या होगा? द टोटल इंस्टेंटेनियस करंट सब्ट्रैक्ट द DC कंपोनेंट फ्रॉम इट, यू विल गेट योर आंसर। एक सेकेंड, DC को ना बेटा, सॉरी मैंने वो सिंबल दूसरा ले लिया हुआ है ना, एवरेज वैल्यू है तो कैपिटल से लिया हुआ है, IDC ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये DC निकाल दिया हुआ ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, टोटल में से IDC निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है नेटवर्क सिग्नल भी, बेटा two frequency components, a current is sum of two currents which are of different frequency, then the RMS value will be under root of IRMS 1 square plus IRMS 2 square। यहां माइनस है तो IRMS 1 square माइनस IRMS 2 square। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे IRMS डैश अंडर रूट ऑफ IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर, हो गया आंसर। लेकिन फिर वही बात, ये लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं इनके लिए डेरिवेशंस कर देता हूं। ठीक है, इनके लिए डेरिवेशंस कर देता हूं, अदरवाइज जस्टिफाइड नहीं है, ये सीधा आना चाहिए चीजें। चलिए, सो आई RMS डैश मतलब इसका AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 pi I dash square d alpha, which can be further written as under root of 1/2 pi integral 0 to 2 pi I dash is I minus IDC square d alpha। एक्सपेंड करते हैं इसको, I RMS dash will be 1/2 pi integral 0 to 2 pi A square plus B square minus 2AB डी अल्फा। ठीक है बेटा, इसको एक्सपेंड कर दिया, I माइनस IDC होल स्क्वायर को, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन के लिए तीनों टर्म को स्प्लिट कर अलग अलग करके लिखो, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई I स्क्वायर डी अल्फा प्लस 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई IDC स्क्वायर डी अल्फा माइनस 2। देखो एक चीज, IDC इज अ कांस्टेंट वैल्यू और अ वेरिएबल। IDC इज अ कांस्टेंट वैल्यू और अ वेरिएबल।
It's a constant value. Of course, it's a constant value. So I'm taking it out of the integration. I'm taking it out of the integration. So 2 1 by 2 pi, sorry, ये 2 pi लिखना भूल गया मैं, sorry. 1 by 2 pi to IDC I'm taking out of the integration. Integral 0 to 2 pi small I d alpha. Small I d alpha. ठीक है? ठीक है यहां तक? Next step. If you look at this, can you see this is I RMS square? ये देखो, इसको देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये आई आर एम स्क्वायर 1 by 2 pi 0 to 2 pi I square d alpha, 1 by 2 pi 0 to 2 pi I square d alpha. This is I RMS square. सॉरी 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 सॉरी, इसका अंडर रूट लगाना भूल गया, इसको यहां स्क्वायर कर लो फिर, ठीक है? ये अंडर रूट लगाना था ना यहाँ, ये भूल गया लगाना, मैं अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इस साइड मैंने. ओके ओके, अंडर रूट मेरे से मिस हो गया था, यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, एक ही बात है. ओके, तो ये आ गया आई आर एम एस स्क्वायर प्लस, इसको देखना बेटा, यहां पे मैं आई डी सी स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर ले रहा हूं, क्या बचा 0 to 2 pi डी अल्फा इंटीग्रेशन अल्फा अपर लिमिट 2 pi 2 pi 2 pi कट गया, 1 आ गया, बस आईडीसी स्क्वायर बचा इसका. ठीक है, आईडीसी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लेके कर लो, आईडीसी स्क्वायर आया. माइनस, ध्यान से देखना इसको, भाई क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा. ये किसके बराबर है? इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये मैंने 2 IDC लिखा, 1 by 2 pi इसके साथ ऐसे लिख दिया. नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये किसके बराबर है? गुड शेखर, ये एवरेज वैल्यू तो है 1 by 2 pi 0 to 2 pi I डी अल्फा, एवरेज वैल्यू. ओके, तो इसका मतलब इसको हम IDC लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 times IDC स्क्वायर. It will be 2 times IDC square. It means this is coming as I RMS square minus I DC square. Therefore, finally, you can see RMS value of the AC component of the load current is coming as under root of I RMS square माइनस आई डीसी स्क्वायर. तो आप वो फॉर्मूला नेटवर्क वाला लगा के डायरेक्टली लिख सकते थे, ये इनके लिए मैंने नए बच्चों के लिए पूरा करके दिया है, अदरवाइज देयर वाज नो नीड टू डू इट. पर ध्यान रहे ये क्या है? दिस इज द RMS value of not the load current, of the AC component of the load current. ये जो AC कंपोनेंट है उसका मैंने RMS वैल्यू निकाला है. प्लीज डिफरेंस ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ध्यान रखिएगा दोनों चीजों में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम निकालते हैं काम की चीज, मतलब अभी भी काम की थी, लेकिन वो काम की चीज निकालने के लिए पीछे वाली चीजें निकालनी है. बेसिकली मैं निकालना चाहता था रिपल फैक्टर कितना. रिपल फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट रिपल फैक्टर कैसे निकालता? रिपल फैक्टर कैसे निकालता? क्योंकि रिपल फैक्टर क्या होता है? एसी कंपोनेंट कितना है. तो एसी कंपोनेंट कैसे निकलेगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट अपॉन द डीसी कंपोनेंट. आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट. अब मैंने निकाल लिया ना आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट, अब निकलेगा रिपल, इसलिए सब कुछ कर रहा. चलिए बेटा, अब निकालते हैं रिपल फैक्टर. सो व्हाट इज रिपल बेसिकली? वैसे तो कल बताया था मैंने, फिर बता देता हूं दोबारा से.
रिपल क्या होता है? अनवांटेड AC component in the output of the rectifier. अनवांटेड AC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के आउटपुट में अनवांटेड AC कंपोनेंट जो होता है वो रिपल कहलाता है. आ गया समझ में? है ना? बात तो हो चुकी है इस बारे में. तो रिपल फैक्टर R, दिस इज नॉट गामा. R ऐसे भी लिख सकते हो, बट बुक्स में जो है रिपल फैक्टर का R ऐसे, और मुझे भी आदत है R लिखने की इस तरह से, तो ये गामा नहीं है बेटा, याद रखना रिपल फैक्टर का R है, कंफ्यूज मत हो जाना. दिस इज इक्वल टू RMS value of the AC component divided by DC component. Divided by the DC component. चलो अपने पास तो वैल्यू है, मतलब एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, इट इज I RMS डैश अपॉन IDC, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज V RMS डैश अपॉन VDC. बात वही है, वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, आंसर सेम आना है अपना. वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, आंसर अपना सेम आना है. ओके, so let's put the values. So ripple factor will be, I'm using the current because I have calculated. What is IRMS dash? Under root of IRMS square minus IDC square divided by IDC, which can be further written as under root of, next page myself, which can also be written as ripple is equal to under root of IRMS. देखना बेटा यहाँ पे, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेता हूँ, आई डीसी स्क्वायर हो जाता, दोनों को अलग अलग करके आई डीसी स्क्वायर दे दिया, ये कट के 1 हो जाएगा, ये IRMS अपॉन IDC होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, IRMS अपॉन IDC होल स्क्वायर -1. Let's substitute the values. What is IRMS? IRMS is IM by 2. What is IDC? IM by pi whole square -1. Which will be equal to under root of, IM कट गया, it is pi square upon 4 -1. You calculate it in the calculator, it must be 1.21. मतलब it is 1.21. So ripple factor 1.21 आया है. Is it good? Is it bad? Let's talk about it. It's very bad. Why? Because if ripple factor is 1.21, by this formula, can you see the RMS value of the AC component is 1.21 times the DC component. मतलब AC component DC से ज्यादा है. क्या रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तुम लोग? आई बात समझ में? आई बात समझ में? The AC component is more than the DC component. What kind of a rectification it is? I hope you got the point. I hope you got the point. So you want the ripple factor to be as small as possible, isn't it? So we want the ripple factor to be as small as possible. How small? How small do you want? Good, 0. Ripple factor should be 0. There should not be any AC component, although very difficult to achieve with rectification. But yes, yes. Ideally, we want it to be 0. We want it to be 0. Okay. Let me write the story. Ripple factor is
the measure of AC component in the output of the rectifier. Measure of AC component in the output of the rectifier. Therefore, ripple factor should be small and ideally it should be 0. Ideally it should be 0. Next, as ripple factor is 1.21, therefore AC component is more than the DC component. More than the DC component. समझ आ रहा है? ये नहीं पूछूंगा मजा आ रहा है, यही पूछूंगा समझ आ रहा है, because I know some students find it very boring, but I'm trying my level best to explain you every single thing so that to make it interesting. But the more important thing is that you should be able to understand what I'm telling you. Everything that I'm writing, you should be able to understand it. Conceptually पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है. ठीक है? Good, good. So the fifth point that we studied just now is ripple factor. Ripple factor tells us about the unwanted AC component in the output of the rectifier. How do we calculate it? We calculate it by taking the ratio of the RMS value of the AC component of the output divided by the DC value of the output, IDC. And ripple factor for a half wave rectifier comes out to be 1.21. You have to remember it. The RMS value of the AC component under root of IRMS square minus IDC square. What is IRMS? IM by 2. What is IDC? IM by pi. What is instantaneous current? IM sin alpha. What is IM? VM upon RF plus RL. What if V gamma was there? It would have been VM minus V gamma upon RF plus RL. ये अगर यहाँ V gamma होता तो ये क्या आती करंट? V input minus V gamma upon RF plus RL. What if secondary winding resistance is also given? Then the instantaneous current will be V input minus V gamma upon RSW plus RF plus RL. Accordingly we will manage जो भी एग्जाम में आएगा. पर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट 99% जो केसेस मैं लेने वाला हूं, कभी मैं RF लूंगा, कभी मैं RF नहीं लूंगा, कभी मैं V गामा लूंगा, कभी मैं V गामा नहीं लूंगा. जो केसेस मैं लूंगा 99% वही एग्जाम में आते हैं क्योंकि जगह जगह वही है. पर मैं चाहता हूं कि आप माइंड ओपन रखें, कुछ और भी आए तो आप हैंडल कर पाए उसको. That's why we are going step by step with through derivations and understanding everything. ठीक है ना? अभी देखो क्या है, यहां पे मैंने V गामा नहीं लिया तो ये बड़ी प्यारी सी ऐसे वेव फॉर्म आ गई है ना. तो तुमने यहां पे इसकी एवरेज वैल्यू में निकाल ली, तुम्हें याद थी IM by पाई. बट बेटा बाई चांस अगर V गामा होता ना तो ये वेव फॉर्म ऐसे आती यहां से. ये मतलब ये जीरो से शुरू नहीं होती, आफ्टर सम टाइम शुरू होती. मैं आगे चल के दिखाऊंगा तुम्हें, ये समझाऊंगा आगे चल के. तो उस केस में एवरेज वैल्यू के लिए फिर प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ता, प्रॉपर. फिर सीधा नहीं लिख पाते. दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक बार कर देता हूं, एक बार हो जाए. ठीक है, चलिए ये सब बातें हो गई. अब चलते हैं सिक्स चीज में, एक और नई चीज सीखते हैं. कौन से कलर से लिखा था? सिक्स्थ, दैट इज फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर नाम की चीज हम लोगों ने नेटवर्क में देखी थी. जो नए बच्चे हैं, दवाई खा रहा हूं, ठीक है, कुछ गलत नहीं सोचना, पता नहीं क्या लिया, मुंह में दबा लिया इन्होंने. ठीक है, तो मेडिसिन ली है. नए, मुझे हर बार बताना पड़ता है भाई, जो पुराने हैं आपको पता है, जो नए बच्चे इनका कोई पता नहीं. अरे क्या खा रहे हैं ये? अच्छा इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अच्छा इसी से 2 बार आईएस निकलता है, कल से हम भी चालू करेंगे. क्या है ये? ठीक है, ऐसे गलत मत सोच लेना. गले के लिए दवाई ले रहा हूं, कुछ नहीं है. ठीक है, चलो. फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर, सी फॉर्म फैक्टर, it is the ratio of the RMS value to that of the DC current. दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस लगा? सेम ही तो लिख दिया मैंने. रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर सेम ही है, इसका मतलब है ना, बोथ आर सेम. नहीं, क्यों? क्यों, क्या हो गया?
उसमें आरएमएस वैल्यू एसी कंपोनेंट ऑफ द करंट था, इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ द टोटल करंट है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया, शाबाश शाबाश। ठीक, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर बेटा, अगर इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, व्हाट इज आईआरएमएस? आईआरएमएस हमने निकाला था IM by 2। व्हाट इज आईडीसी? IM by pi, this will be pi by 2. If you solve pi by 2, it comes out to be 1.57। 1.57। तो ये अपना फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है हाफ वेव रेक्टिफाइड की। सर फॉर्म फैक्टर बताता क्या है? ठीक है, फॉर्म फैक्टर बताता है स्मूथनेस ऑफ द वेवफॉर्म। फॉर्म फैक्टर मेजर्स द स्मूथनेस ऑफ द वेवफॉर्म। If form factor is more, then smoothness is less. If form factor is less, then the smoothness is more. Okay? Form factor जितना कम उतनी smoothness ज्यादा होती है। Ideally form factor should be 1. Ideally form factor should be 1. अभी मैं आपको दिखाता हूं फॉर्म फैक्टर 1 होने से स्मूथनेस कैसी होगी, बिकॉज आई शो यू इफ फॉर्म फैक्टर इज 1 देन द रिपल फैक्टर इज गोइंग टू बी 0। खत्म, रिपल खत्म। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है? बिकॉज चलो यहां से देखो, अगर फॉर्म फैक्टर 1 हुआ इसका मतलब IRMS IDC के बराबर है। अगर IRMS IDC के बराबर है इसका मतलब आउटपुट करंट में AC है ही नहीं, पूरी DC है, तभी IRMS IDC के बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड। चलिए तो मैं ये पॉइंट लिखता हूं, फॉर्म फैक्टर is the measure of form factor is the measure of smoothness of the waveform, measure of smoothness of the waveform। स्मॉलर फॉर्म फैक्टर को FF लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में स्मॉलर फॉर्म फैक्टर, ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो आई कैन राइट बट FF लिख दे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए क्या लिखा था। इंडिकेट्स, smaller form factor indicates less variation or more smoothness। Smaller form factor indicates less variation or more smoothness। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ये फॉर्मूला देख लो, IRMS अपॉन IDC। ओके, ये फॉर्म फैक्टर तो है, isn't it form factor? IRMS upon IDC is form factor, so it is form factor square minus 1। तो रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बीच में हमें एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। नाउ इफ फॉर्म फैक्टर इज 1, रिपल फैक्टर इज 0, दैट इज द आइडियल केस। सो आइडियली फॉर्म फैक्टर शुड बी 1। आइडियली फॉर्म फैक्टर शुड बी 1। सो यहां पे भी फॉर्मूला लिख देते हैं, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1 ideally form factor is equal to 1। ideally form factor is equal to 1। क्लियर हुआ फॉर्म फैक्टर? समझ आया फॉर्म फैक्टर सबको? चलिए, तो अभी तक हमने अपनी कंसंट्रेशन लोड पे बना के रखी थी, है ना? अभी भी मुझे कुछ चीजें निकालनी, फिर वापस लोड पे आएंगे, फिर वापस लोड पे आएंगे, पर अभी तक मैंने कॉन्सेंट्रेशन लोड पे बना के रखी। मैंने लोड की इंस्टेंटेनियस करंट निकाली, मैंने लोड की डीसी करंट निकाली, मैंने लोड की आरएमएस करंट निकाली, मैंने लोड की करंट की एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू निकाली, मैंने रिपल फैक्टर निकाला लोड के लिए, मैंने फॉर्म फैक्टर निकाला लोड के लिए। 6 पॉइंट्स आई हैव डन, 6 पॉइंट्स आई हैव डन। चलेगा इतना?
सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, सेम होता तो नो, लिखना क्या चाहते हो? सॉरी सर, बाय मिस्टेक। हाँ, तुम पढ़ाई करते हो, चैट कर रहे हो किसी के साथ, गलती से सर गलत विंडो पे चैटिंग मैसेज सेंड हो गया सर, सॉरी सर, गलत विंडो पे आ गया मैसेज, कहीं और भेज रहा था, आपको आ गया नहीं? चलो चलो, ठीक है ठीक है, देखो देखो देखो। 7th, एवरेज और डीसी डायोड वोल्टेज, मतलब जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी उसकी एवरेज या फिर उसकी डीसी मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो पहले क्या करना होगा? पहले डायोड की वोल्टेज निकालनी होगी, फिर देखेंगे। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप चले। फर्स्ट केस, अल्फा 0 से पाई। जब अल्फा 0 से पाई है बेटा, उस केस में हमारा डायोड जो है वो ऑन है। ये मेरे पास केस है, ये मेरे पास केस है। तो अभी शुरू में मैं आरएफ को निग्लेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये करंट आई फ्लो करेगी, एज दिस इज द डायोड, सो द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, लेट्स कॉल इट एज वी डायोड। ठीक है, सो वी डायोड in this particular case is equal to how much? I into RF. This instantaneous load current which we have already calculated multiplied by the forward bias resistance of the diode will give me that voltage drop across the diode. But you know that RF is so small that it is going to be zero. That it's going to be zero. So what's the fun of taking its value? It's going to be zero. ठीक है? ठीक है बेटा यहां तक? ठीक है? Good. Second case, alpha pi to 2 pi. अल्फा पाई टू 2 पाई, तो आपको पता है इस केस में डायोड क्या था? रिवर्स बायस। दिखाने की जरूरत तो नहीं है, मतलब किसी को भूल रहा है तो बता देना करना भाई। अल्फा पाई टू 2 पाई जो है नेगेटिव वाला साइकिल था, नेगेटिव वाले साइकिल के लिए अपना डायोड रिवर्स बायस था, यानी ओपन सर्किट था। ओके, डायोड रिवर्स बायस, दैट इज ओपन सर्किट। इतने में फिर नहीं आ पाएगा ना, मुझे ये भी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है तो नेक्स्ट पेज में जाएगी, हो पाएगा इतने में? ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, डायोड रिवर्स बायस हो गया, डायोड अपना ओपन हो गया, ये सर्किट बचा। सो नाउ लुकिंग एट द सर्किट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ द डायोड? शाबाश सत्या, वी इनपुट।
because the drop here will be 0. RF कम क्यों हुआ मतलब? I didn't get your question. You're asking me that in the first case, why I'm saying that the value of RF is very small. The forward bias resistance of the diode is very small. Basically, when you will study EDC, you will understand all these things. But if I show you with the characteristics, can you see the slope is approximately infinity? When the diode is forward biased, जब cutting voltage के ऊपर निकल जाता है, the slope is approximately infinity. It is I by V. So the resistance is inverse of the slope. The slope is approximately infinity, hence the resistance is 0, approximately 0. So the forward bias resistance of the diode is very small. The reverse bias resistance of diode is very high. Okay. So V diode is equal to V input. And what is V input? Vm sine alpha. Vm sine alpha. Let me plot it. ठीक है, तो बेटा आप देखिए, जब इन अल्फा 0 टू पाई है इनपुट का, ये इनपुट है, अभी लिख दूंगा यहाँ पे अल्फा अल्फा, इनपुट का अल्फा 0 टू पाई है, उस समय मेरा आउटपुट कितना है? 0. और जब अल्फा पाई टू 2 पाई है, अल्फा पाई टू 2 पाई है, उस समय डायोड का आउटपुट इनपुट के बराबर है. तो ये इनपुट इसके बराबर सेम, फिर 0, फिर सेम, फिर 0 एंड सो ऑन. सबको समझ में आ गया डायोड की वोल्टेज की वेवफॉर्म? बोलो, सबको क्लियर होगी डायोड की वोल्टेज की वेवफॉर्म? गुड गुड. तो ये जो है, अभी तक हमने क्या निकाला कि जो डायोड है हमारे पास, डायोड का जो वोल्टेज की वेवफॉर्म डायोड के अक्रॉस आएगी वो ये आएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डायोड की है, आउटपुट की नहीं है. आउटपुट की अलग है, ये डायोड की है. ओके.
फाइन, मुझे क्या निकालना है? एवरेज डायोड वोल्टेज. दिस इज इंस्टेंटेनियस डायोड वोल्टेज ना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एवरेज डायोड वोल्टेज. तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो. यू ऑलरेडी नो इट इज माइनस वीएम बाई पाई. आप फिर रेक्टिफाइड आ रहा है प्रॉपर्ली, अदरवाइज कैलकुलेट कर लेते हैं. डायोड एवरेज वैल्यू, what this will be? 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi instantaneous diode voltage d alpha, that is 1 by 2 pi integral 0 to pi diode instantaneous voltage, that is 0 to pi 0. So 0 से pi 0 plus integral pi से 2 pi, pi से 2 pi, it is Vm sin alpha, है ना, इनपुट को फॉलो कर रहा है. So it is Vm sin alpha d alpha. And now if you solve it, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, it will be minus Vm by pi. ठीक है, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, Vm बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा का हम लिखेंगे cos अल्फा 2 pi पाई, लिमिट पुट करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू. Now, do you want to give a try? If RF is not neglected, then what will be the DC average value? Then what will be the diode's average value? Is going to be complicated. So I'll show you that also, है ना? क्योंकि एक केस में दिखा दूंगा तो बाकी किसी भी केस में आप वैसे ही करोगे, मतलब प्रोसीजर सेम रहता है. That's why I always emphasize, no matter which subject we are learning, I always emphasize you people to learn the concepts. तो एक ढंग से सीखते हैं कि अगर मैं आरएफ को निग्लेक्ट नहीं करता तो क्या होता, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. लेट्स हैव अ लुक. So we are going for the case if RF is not neglected. First, we will do the analysis alpha to pi. मतलब RF की value है and I have to consider it. So I'll do the analysis from alpha to pi first. लो भाई, ये आ गया सर्किट हमारे पास. Now in this case, the voltage of the diode, this will be I into RF. So direct I की वैल्यू लिख दी, और I can go for the voltage division also. वोल्टेज डिवीजन लगा लो, नहीं तो I लिख के into RF कर दो. वोल्टेज डिवीजन का जो फॉर्मूला डेरिवेशन है. So it will be V input upon RF plus RL multiplied by RF. तो ये मेरे पास वोल्टेज ऑफ द डायोड निकल के आ गया. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? फिर क्या करूं, एक ही वेव फॉर्म में बना दे. पिछली बार भी तो बना के दिया था पिछली बार. चलो बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब बाद में भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है. मतलब यहाँ मैं कुछ लिखूंगा बाद में, कुछ प्लानिंग टू डू समथिंग दिस टाइम. सेकंड, अल्फा पाई टू 2 पाई.
डायोड रिवर्स बायस्ड, that is open circuit. इस केस में तो कुछ करना ही नहीं है, इस केस में तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? सीधा वी डायोड वी इनपुट के बराबर, क्योंकि ओपन है, खत्म होगी बात। सही है। अब तुम्हें निकालनी है एवरेज वैल्यू, अब तुम्हें निकालनी है एवरेज वैल्यू। एंड नाउ यू कैन नॉट सिंपली राइट, यहां तो मैंने सीधा देख के बोल दिया माइनस वीएम बाई पाई। क्यों? यहां पे तो सिंपल फुल वेव रेक्टिफाइड प्रॉपर ब्यूटीफुल सी आ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वेवफॉर्म डिफरेंट आएगी। तो मैं कंप्लीट वेवफॉर्म बनाने लगा हूं, इंस्टेंटेनियस करंट भी बना दूंगा, इसमें आउटपुट वोल्टेज भी बना दूंगा कि अगर मैंने आरएफ लिया होता तो क्या होता, है ना। हाँ हाँ, इंतजार कर रहा हूँ अंशु, तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, तो तुम्हारा इंतजार करेंगे, कैसी बात कर रहे हो तुम। हाँ हाँ, तुम लिखो यार, ये सब फालतू की तुम लिखो, आराम से लिखो, तुम बाकी वेट करेंगे तुम्हारा, तुम लिखो आराम से। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे वीवीआईपी हो यार क्लास के, तुम्हारे लिए सब वेट करेंगे, तुम आराम से कॉपी करो, वी आर देयर फॉर यू। चलो। अबे यार स्क्रीनशॉट ले लिया करें, थोड़ा सा पीछे जाके जल्दी से, तुम्हें बनाने में उतने टाइम लगता है, उतनी देर में थोड़ा सा वापस पीछे करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते। चलो ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू गो फॉर एक वेवफॉर्म, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ वी इनपुट। दूसरी वेवफॉर्म, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं इसको इतना, ठीक है, इतना इतना एक आ जाएगा वीएम। दूसरा पहले मैं एक एक करके बनाता हूँ। सर सच में आप धागा खोल रहे हैं, कोई एजुकेटर इतना डीप नहीं जाता, फॉर्मूला लिखा देते हैं, थैंक्स सर। चलो बेटा वेलकम। हो गया। ये हो गया। बस मैं एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूं, फिर आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। पहले मुझे स्ट्रक्चर क्रिएट करने दो एक बार, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया फिर वो चेंज नहीं होगा। छोटा करना पड़ेगा। कितना आएगा, एक दो तीन चार, बहुत है। चलिए शुरू हो जाते हैं। ये आ गया बेटा हमारा इनपुट, दिस इज अल्फा वी इनपुट वीएम माइनस वीएम। ये थी हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट ब्लू से बना देते हैं बेटा। करंट कितनी आएगी इफ यू लुक एट दिस, वीएम वी इनपुट अपॉन आर एफ प्लस आर एल। कभी भी वो वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं देता, अगर उसने सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस दी होती तो मैं लिखता करंट को वी इनपुट अपॉन आर एस डब्ल्यू प्लस आर एफ प्लस आर एल, सबका लिख देते। ठीक है यहां तक, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बना देते हैं।
तो देखिए बेटा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तो ये V इनपुट अपॉन RF प्लस RL है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो करंट कितनी हो जाएगी डायोड की? जीरो। तो करंट विल बी जीरो, ओपन है। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये ऐसे, नेगेटिव हाफ साइकिल जीरो, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे, नेगेटिव हाफ साइकिल जीरो, पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन इट विल स्टार्ट। एंड this is alpha. What we have plotted over here is current I, and this peak value, ये जो peak value आ रही है, this is Vm upon RF plus RL। तो मैंने कोशिश करी है कि करंट का जो पीक वैल्यू है उसको थोड़ा छोटा रखने की वोल्टेज की पीक वैल्यू से, बिकॉज दिस इज Vm एंड नाउ Vm इज गेटिंग डिवाइडेड बाय सम वैल्यू, तो ये थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो पाया कि नहीं पता नहीं, आई ट्राइड माय बेस्ट, जगह जितनी है उसके हिसाब से मैनेज करने के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ लेट्स ड्रॉ वी आउटपुट ऑल्सो, है ना, आउटपुट वोल्टेज को भी लगे हाथ निपटा डालते हैं। चलिए, तो बेटा आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी? दिस विल बी आउटपुट वोल्टेज। Output voltage will be the current multiplied by RL, that is V input upon RF plus RL multiplied by RL। ठीक है, तो चलो, और जब रिवर्स है तो V आउटपुट जीरो, बिकॉज द करंट इज जीरो। तो चलिए बनाया जाए इसको भी। तो पीक वैल्यू Vm अपॉन RF प्लस RL इंटू RL, ये आ गई पीक वैल्यू इसकी। एंड फाइनली जिसके लिए हमने चालू किया था वो तो बेचारा रह ही गया। वोल्टेज ऑफ द डायोड। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इनपुट। सो इफ आई प्लॉट इट, ठीक है, तो जब बेटा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पीक वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल, बिकॉज RF वैल्यू इज वेरी स्मॉल। RF बहुत छोटा है तो ये बहुत छोटा होगा, रिवर्स में तो वो सेम माइनस Vn के बराबर आएगा। ये आपका सारा का सारा प्लॉट बन के आया। अब बताओ क्लियर हो गया? तो क्या ही फर्क पड़ा RF आगे, है ना, कुछ और आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस V गामा का बचा है तुम्हारा देखना कि अगर सर कटिंग वोल्टेज आ जाती तब क्या होता, वो भी तुम्हें दिखा दूंगा मैं, है ना, वो भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि कटिंग वोल्टेज आएगी तो क्या होगा। यहां तक अपन को सब समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं डायोड की एवरेज वैल्यू निकालो, because I wanted to calculate the average value of the diode. So if standard waveform is not there and you have to find the average value, then you will have to use the formula. जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए जा रहा हूँ, तब से कितनी बार तो मैंने कर दिया है ये फॉर्मूला यूज, है ना, जैसे यहाँ पे भी किया था। तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं इसका। लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, मेहनत करते हैं। V डायोड एवरेज, कि तब जब RF निगलेक्ट नहीं होता तो 1/2 पाई
इंटीग्रल 0 to 2 पाई, मैं अब 0 to पाई कर रहा हूं, ठीक है, पहले लिमिट स्प्लिट कर रहा हूं, तुम्हें पता है फॉर्मूला 0 to पाई। इस केस में क्या है, आई आर एफ डी अल्फा जब ये फॉरवर्ड बायस था, प्लस इंटीग्रल पाई टू 2 पाई रिवर्स बायस में इनपुट वोल्टेज वीएम साइन अल्फा डी अल्फा। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट 1/2 पाई। आर एफ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि आर एफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रल 0 to पाई, what is the instantaneous value of the load current or output current? Im sin alpha d alpha, where Im is Vm upon Rf plus RL. Im sin alpha d alpha plus Vm बाहर ले लिया, इंटीग्रल पाई टू 2 पाई sin alpha d alpha. This can be further written as 1/2 पाई Im इंटीग्रेशन के बाहर Im Rf sin अल्फा क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस के लिए पाई नीचे जीरो ऊपर, प्लस ये Vm sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा 2 पाई नीचे, सॉरी तो फिर माइनस आ जाएगा ना, इसको माइनस कॉस अल्फा ही रहने देता हूं, मतलब लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो वापस आ रहा है नीचे मतलब माइनस आ रहा है तो मैं पहले एडजस्ट कर लूंगा उसको, ठीक है ना, इसको माइनस छोड़ रहा हूं, करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 1/2 पाई cos of 0 1 cos of pi -1, so 1 minus of -1 plus 2, तो 2 im rf आ गया, प्लस Vm अपर लिमिट cos of 2 pi -1 माइनस ऑफ cos of pi, माइनस माइनस प्लस और फिर वो -1, ठीक है, कितना आ गया, -2, -2 माइनस आएगा ना, -2 आएगा। सो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 2 पाई अंदर गया, 2 कट गया, Im Rf प्लस सॉरी माइनस Im Rf 2 कट गया, पाई बचा, माइनस Vm, मुझे Vm की जगह डालना तो पड़ेगा ही, Vm को मैं लिख दूं बेटा Im इंटू Rf प्लस RL, कि नहीं लिख सकता, ठीक है ना, मतलब peak value of the current over here will be the peak value of the current flowing multiplied by Rf and RL, that will give you Vm, है ना, Vm will be Im Rf into Im RL, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। So now this can be further written as, थोड़ी सी जगह बना ले नीचे अपने, इसी पेज में आंसर पूरा फिट हो जाएगा। This can be further written as V diode average is equal to, ये एक्सपेंड किया मैंने, Im Rf कट गया, क्या बचा, माइनस Im RL बाई पाई, और Im कितना है, माइनस Vm अपॉन Rf प्लस RL, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पाई पहले लिख रहा हूं, Rf प्लस RL बाद में लिख रहा हूं, ठीक है ना, Im क्या था, Vm अपॉन Rf प्लस RL, this is your average value of the diode if Rf is there, or suppose now Rf is 0, it is ideal, ये कट गया, कितना आया, माइनस Vm बाई पाई, यही तो आया था पहले भी जब हमने कहा था Rf निगलेक्ट कर दिया। आगे समझ में सबको, गुड गुड, शाबाश शाबाश। तो
अब हमने देखा कि अगर हम आरएफ को कंसिडरेशन में लेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं कर रहा आरएफ। आरएफ कुछ नहीं, आरएफ लिख दो, करंट में नीचे आरएफ आ गया। अगर आपको ये सर्किट समझ में आया हुआ है देन वेरी क्विकली यू कैन हैंडल दिस थिंग्स, देन वेरी क्विकली यू कैन हैंडल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये था हमारा डायोड की एवरेज वैल्यू। फिर डायोड की बात कर रहे हैं तो हमने डायोड की एक एवरेज वैल्यू देख ली। कोई एक और वैल्यू डायोड की काम की है यार? कौन सी वैल्यू डायोड की एक और वैल्यू काम की? कल बात करी थी पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, तो डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज भी देख लेते हैं, है ना? लगे हाथ। 7 पॉइंट्स हुए ना, 7 8। पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज PIV। तो भाई पीक इनवर्स वोल्टेज PIV देखने के लिए डायोड अपना रिवर्स बायस होना चाहिए, डायोड अपना रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब जब अल्फा पाई से 2 पाई होगा, डायोड रिवर्स बायस होगा, ओपन सर्किट होगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी V इनपुट। तो हम लोग कहते हैं, मैं लिख देता हूं कहानी इसके लिए थोड़ी सी, और दोबारा कल समझाया तो है फिर भी लिख देता हूं। इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज which appears across the diode under it is the maximum reverse voltage which appears across the diode under reverse bias condition। रिवर्स बायस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस अपीयर होती है उसको हम PIV रेटिंग बोलते हैं उसकी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज जो होती है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, बिकॉज आई जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है रिवर्स बायस डायरेक्शन में वोल्टेज है, तो मुझे मैग्नीट्यूड बता दो उसका। ठीक है ना, नेगेटिव साइन आई डोंट नीड, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं रिवर्स, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मैक्सिमम इन reverse bias condition। therefore इस केस में PIV कितना है? VM। you see it is VI, so कितना आएगा? माइनस VM साइन अल्फा, मतलब माइनस VM नीचे की तरफ आएगी उल्टे में, यहां ये वाली आएगी वोल्टेज, ये डायोड की वोल्टेज है ना, ये कितनी मैक्सिमम डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में आ रही है? माइनस VM। सो आई हैव टेकन द मैग्नीट्यूड VM, तो ये आ गया हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। एंड टू प्रिवेंट, ये कल भी लिखवाया था वैसे मैंने तुम्हें ये, एंड टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू द डायोड the PIV must be less than the breakdown voltage of the diode। That's it, that's it। हाँ, समझ में सबको? तो ये कल बताया था आप लोगों को, छोटी मोटी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो काफी कुछ हमने देखा, रिपल फैक्टर भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब एक और चीज हम देखना चाहते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, कल बात करी थी इस बारे में, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी।
कितनी अच्छी एफिशिएंसी है भैया, कितना एफिशिएंटली रेक्टिफाई कर रहा है, कितने एफिशिएंटली जो इनपुट पावर आ रही है उसको ये कन्वर्ट कर पा रहा है डीसी पावर में या आउटपुट पावर में, मतलब आउटपुट डीसी पावर में। कल बात करी थी हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की, लिखवाया था कल मैंने कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था, चेक करना, भूल तो नहीं गया हूं कहीं, लिखवा दिया हो ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो बेटा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट लिखवा चुका हूं, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, ओके। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी विल बी द डीसी पावर सप्लाइड टू द लोड divided by the total input power into 100. This will be the formula for the rectification efficiency. सही है? Am I right? Good, good. अच्छा एक बात बताओ, what will be, ये पता है कि नहीं है, total input power, total input power कितनी होगी? Can I say that IRMS square into RF plus RL? The total power delivered to the whole circuit will be the total input power delivered by the source network. Total input power will be IRMS square into RF plus RL. If you want me to prove it, of course I can prove it. I'll take the average value of V input into the current I. I'll get the answer. Okay. Power conservation, बिल्कुल Ritik. So now DC power will be IDC square into RL. मतलब total DC power delivered to the load will be total DC current multiplied by RL, IDC square RL, divided by the total input power. This will be I RMS square into RF plus RL into 100. Let's substitute the values. IDC is Im by pi whole square into RL divided by IRMS is Im by 2 whole square into RF plus RL into 100. So this can be further written as 4 ऊपर गया, pi square नीचे आया, RL upon RF plus RL into 100. So finally, मतलब ये percentage efficiency लिखी है मैंने, okay? So finally, percentage efficiency is coming as, if you solve 4 by pi square into 100, it will be 40.52. ये आई है बेटा आपकी एफिशिएंसी, ये आई है आपकी एफिशिएंसी। और अगर आइडियल केस होता, मतलब इफ डायोड इज आइडियल, इफ RF is equal to 0, then percentage rectification efficiency will be 40.52%. मतलब आधी भी कन्वर्ट नहीं हुई, आधी भी कन्वर्ट नहीं हुई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, मतलब जितने भी टोटल इनपुट पावर आई वो आधी भी कन्वर्ट नहीं हुई रेक्टिफिकेशन, मतलब उसमें तो एफिशिएंसी इज नॉट गुड, एफिशिएंसी इज नॉट गुड, अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे पता है तुम लोग सोचो कितने पॉइंट है, खत्म कब होगा ये, मुझे पता है ऐसी फीलिंग आने लगी होगी। So there are 14 points. That we have to cover. Okay. सभी मैंने कहा ना बोरिंग है, दुखी नहीं होना है,
पेशेंस रखनी है। मुझे पता है यहां तक आते आते हिम्मत टूटने लग जाती है कब खत्म होगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि टारगेट है दिमाग में। अच्छा 14 पॉइंट्स है, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट। नहीं, आज का लास्ट पॉइंट अगला वाला हो सकता है। चलो जिन्होंने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक वाले ठीक है, बाकी लोग देखें। अंकित फुल वेव में सेम ऐसा है, पर वहां पे मैं इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा, वहां रिजल्ट्स लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। हाफ वेव की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फुल वेव में सेंटर टैप में कुछ जगह करवाऊंगा, ब्रिज तो बिल्कुल सेम है। सेंटर टैप में थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रिज जल्दी खत्म हो जाएगा, ब्रिज बिल्कुल उड़ता हुआ जाएगा ब्रिज। सेंटर टैप में टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी है, दुखी नहीं होना, ठीक है, पेशेंस रखनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर मैं कॉलेज लेक्चर लगा आया था तो थक गया। कोई 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 बात नहीं, देखो आखिरी पॉइंट है। तुम लोगों को वैसे भी बैठ के देखना ही है ना, तुम लोगों को तो सुनना है ना, आराम से चिल होके सुनो क्या चल रहा है। चलो एज अ मूवी देखो, या फिर अब बाद में रिकॉर्डेड में देख लेना, जो बचा हुआ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बचे हैं अभी, ठीक है। रेगुलेशन फैक्टर, रेगुलेशन फैक्टर देखा था कल, हाँ हाँ देखा था, कि ये मेजर करता है कि हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है जब लोड करंट में चेंज आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब लोड करंट चेंज हो, मतलब जब लोड चेंज हो, तो मेरी वोल्टेज आउटपुट की चेंज नहीं होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो रेगुलेशन फैक्टर अच्छा होना चाहिए, रेगुलेशन फैक्टर अच्छा होना चाहिए, मतलब रेगुलेशन फैक्टर कम होना चाहिए, जितना कम बदले उतना अच्छा है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं, इट इज अ measure of the change in DC output voltage due to the change in load current. So percentage regulation is equal to VDC no load minus VDC full load upon, अब ये इलेक्ट्रिकल वाले हाँ 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 ये तो हमें पता है, ये तो पढ़ा हुआ मशीन में, और ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? VDC नो लोड, मतलब व्हेन देयर वाज नो लोड, नो लोड मतलब RL इंफिनिटी था, RL इंफिनिटी था, या IDC करंट जीरो थी, नो लोड मतलब करंट जीरो। सो व्हेन देयर वाज नो लोड माइनस व्हेन देयर वाज फुल लोड, मतलब RL लग गया अपॉन फुल लोड इनटू 100। तो ये जो वेरिएशन आती है, तो ये चेंज कम होना चाहिए। VDC नो लोड और VDC फुल लोड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो वो है ये। और फिर परसेंटेज के लिए मैंने इसको VDC फुल लोड से डिवाइड किया है। Okay, let's calculate these two values, put it in the formula, calculate the formula for the percentage regulation. कौन से कलर से लिखे? ग्रीन से लिख देते हैं। सबसे पहले VDC नो लोड, तो VDC नो लोड मतलब नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज। सो VDC नो लोड बेटा हुआ कि DC वोल्टेज of the output when DC current is equal to 0 or when the load resistance is tending towards infinity. Let's do it. Let's calculate it. तो फिर वेट, बाबा बाद में पीछे करके देख लेना, रुको कर रहा हूँ, रुक जाओ। सर्किट बना लूं मैं, सर्किट ले लो भाई, तुम कर लो पहले।
तो कर लो पहले। पता क्या किया करो, जो थोड़ा सा छूट जाता है ना वो छोड़ दिया करो और फिर करने दिया करो मुझे। जैसे ही मैं पेज खत्म करूँ या सब टॉपिक खत्म कर दूं फिर बोला करो सर पीछे कर दो, तो मैं दिखा दूंगा। ऐसे बीच में मेरी भी ब्रेक लग जाती है ना, कंटिन्यूटी टूट जाती है मेरी भी। बेटा ध्यान से देखना आप, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकेंडरी पे ये स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, प्योर एसी सेकेंडरी पे पहुंच रही है, ठीक है, सेकेंडरी पे प्योर एसी जो है वो पहुंच रही है, ठीक है, पहुंच गई, सही है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू एट द सेकेंडरी? यहां पे एवरेज वैल्यू कितनी होगी सेकेंडरी पे? डीसी वैल्यू कितनी होगी? शाबाश ऋतिक, इसकी डीसी वैल्यू 0, क्योंकि ये प्योर साइनसॉइड पहुंच रही है, तो डीसी वोल्टेज कितनी होगी? 0 होगी। सर डीसी क्यों ले रहे हो सर? क्या डीसी? डीसी क्यों बेटा? डीसी डीसी कैलकुलेशन चल रही है ना, आई वांट टू कैलकुलेट डीसी, डीसी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो सारी डीसी वोल्टेजेस ले लो, तो डीसी की कैलकुलेशन कर लो, इजी हो जाएगा हमारा, है ना। सारा डीसी डीसी उठा लिया। ये क्या हो गया? वोल्टेज ऑफ द डायोड डीसी। ये क्या हो गया? वोल्टेज ऑफ द डीसी VDCNL, नो लोड डीसी वोल्टेज, मतलब ये RL टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, एट सेकेंडरी प्योर AC, therefore DC वैल्यू इज 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई KVL इन दिस लूप। इस लूप में KVL घुमा देते हैं। चलो KVL लगाते हैं। सो 0 प्लस V डायोड DC प्लस VDC नो लोड is equal to 0. That is VDC no load is coming equal to minus of V diode DC. That is minus of what is the average value of the diode. इसीलिए तो मैंने V diode DC पहले निकाला। कायदे से आप देखो तो मुझे काम की चीजें क्या निकालनी थी? रिपल फैक्टर निकालना था, फॉर्म फैक्टर निकालना था, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालनी है, रेगुलेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है, ये सब निकालना है। उसके लिए मुझे कुछ कुछ चीजें निकालनी पड़ रही हैं। वहां पे रिपल के लिए IRMS डैश निकालना पड़ा और IDC निकालना पड़ा, पर IRMS डैश के लिए IRMS भी निकालना पड़ा, उसके लिए I इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ा। समझ में आ रहा है? समझदार बच्चे वैसे तुम। चलो, तो डायोड की एवरेज वैल्यू माइनस VM बाई पाई, माइनस VM बाई पाई, बिकॉज हम तो आइडियल केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, माइनस VM बाई पाई। सो माइनस VM बाई पाई, देयरफॉर VDC नो लोड पहला काम हो गया, इज कमिंग एज VM बाई पाई। अच्छा तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो है दिस इज द मैक्सिमम DC आउटपुट वोल्टेज, कि नहीं समझ में आ रही? ये जो DC आउटपुट वोल्टेज है मैक्सिमम आई है ये। क्यों? बिकॉज करंट इज 0। भाई जैसे जैसे करंट बढ़ेगी यहां पे ड्रॉप आएगा, जितना ड्रॉप आएगा उतना कम आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना, डू नॉट बी इन अ हरी, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। और क्लास जो है 2 बजे के 5-10 मिनट, 4 बजे के 5-10 मिनट ऊपर जाएगी, तो पेशेंस रखना, ठीक है, 4 बज के छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर जाएगी, पहले ही बता रहा हूं।
मतलब ये पॉइंट खत्म करना है और नहीं करवाऊंगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है वो बनाना है, बिकॉज वो इससे लिंक्ड है, इसकी इक्वेशन से लिंक्ड है। तो मतलब समझ लो बस यही पॉइंट करवा रहा हूँ, क्लास यही पॉइंट करवा रहा हूँ, बस ये समझ लो। सुनाओ सुनाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्योंकि कोई करंट नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो जो वोल्टेज यहां है वो डीडीसी मैक्सिमम है। क्योंकि अगर करंट होती तो यहां पे जो वोल्टेज आती वो क्या आती, इस टोटल वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज में से जो यहां पे ड्रॉप आता। ये बात सही है? हमें मैंने पॉइंट यूज करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये पॉइंट मैं बस यूज करने वाला हूं, फिर जब मैं यूज करूंगा तब मत बोलना ये क्या किया। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे लोड इंफिनिटी ना होता, कोई लोड की वैल्यू होती, तो कितनी वोल्टेज आती यहां पे, कि टोटल जो वोल्टेज उसमें से दोनों ड्रॉप निकाल दो, इस मैक्सिमम में से ड्रॉप निकाल दो तो यहां वोल्टेज मिल जाती। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट, कि अगर अब मेरे पास वीडीसी फुल लोड है, मतलब लोड लग गया, हम क्या है इसका, फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो बेटा वी डीसी फुल लोड किसके बराबर है, डीसी आउटपुट वोल्टेज के जब आईडीसी जीरो नहीं है या आरएल इंफिनिटी नहीं है, या आरएल इंफिनिटी नहीं है। So there are two ways I can calculate this. There are two ways I can calculate this. First, it's very easy, isn't it? So इतना क्या दिमाग लगाना है, VDC full load will be the DC current flowing through the circuit multiplied by the load resistance. लो आ गया, है ना? सर यहाँ पे VDC full load कितना होगा, करंट जो जारी हो गई IDC इंटू RL कर दो, आ गया आंसर, है ना? मुझे एक्चुअली दोनों चाहिए, मुझे ये निकालना है, बेसिकली ये निकालना है मुझे, इसके लिए मैं डेरिवेशन में कुछ कुछ चीजें कर रहा हूं, ठीक है? मुझे ये निकालना है अब। तो एक में मैं ये वाला फॉर्मूला डालूंगा, दूसरे में मैं दूसरा डालने वाला हूं, ठीक है? दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट। अनदर वे, लेट्स डू इट लाइक दिस, लेट्स प्रॉपर्ली सॉल्व इट, लेट्स प्रॉपर्ली सॉल्व इट। जगह बचाते हैं ऐसे, तुम जगह वेस्ट हो रही है। एक तो ये आ गया वीडीसी फुल लोड, वीडीसी फुल लोड, वीडीसी फुल लोड, दूसरा सर्किट से करते हैं। लोड लग गया बेटा आरएल, सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कंसीडरेशन में ले रहा हूं, आरएसडब्ल्यू नहीं भी लेनी तो भी चलेगा, पर मैं कुछ कुछ चीजें जगह जगह बोला था ना, कभी कुछ डाल दूंगा कभी कुछ डाल दूंगा, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कब कैसे सर्किट को हैंडल करना है। आरएफ, यहां से करंट जाएगी आईडीसी, जो कि अब इस बार जो है बेटा वो जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, और जो मेरी यहां पे करंट आएगी, दिस करंट इज वीडीसी फुल लोड। तो अभी हमने बात करी थी ना कि वीडीसी फुल लोड को मैं क्या लिख सकता हूं, वीडीसी नो लोड, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरनल, इंटरनल एम लग गया, एन और एन जुड़ गए, इंटरनल डीसी वोल्टेज ड्रॉप, अभी पिछले पिछले पार्ट में मैंने भी डिस्कस किया, ये सही है? सही है बेटा? यस, गुड गुड। इंटरनल डीसी वोल्टेज ड्रॉप, सो वीडीसी फुल लोड कैन बी रिटन एज वीडीसी नो लोड माइनस आईडीसी, इंटरनल डीसी वोल्टेज ड्रॉप कितना है, आरएसडब्ल्यू आरएफ दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, सो आई कैन राइट इट एज माइनस आर आईडीसी इंटू आरएसडब्ल्यू प्लस आरएफ। So you can see VDC full load is equal to
वैल्यू डाल देता हूं। VDC नो लोड को VM बाई पाई लिख देते हैं, माइनस IDC इंटू R, वेयर R is RF प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये है अपना VDC फुल लोड। इतना क्लियर हुआ? Now the next question that comes to my mind is this, मतलब ऐसे इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि अगर बेटा RL कम होगा, अगर RL कम होगा तो VDC फुल लोड को क्या होगा? If RL will reduce, then what will happen to VDC full load? Will it decrease or increase? So we can easily see if RL is decreasing, VDC full load is decreasing. ठीक है, लेकिन यहां से देखना थोड़ा गलत है, यहां से देखना गलत है। You should see it from here. सर यहां से गलत क्यों है देखना? यहां से देखना इसलिए गलत है बेटा, because if RL decreases, then IDC increases. अगर लोड रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट, डीसी करंट बढ़ेगी, तो इन दोनों से तुम कैसे देख सकते हो? एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यहां से तुम्हें नहीं पता लगेगा। समझ में आई मेरी बात? पर वो तुक्का लग गया अपना, ठीक है। तो यहां से हम पता है इस तरह से लगाएंगे कि RL घटेगा तो IDC बढ़ेगा। अगर IDC बढ़ेगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो अगर IDC बढ़ेगा तो इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये घटेगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं डीसी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में सीधे क्वेश्चन आएंगे। डीसी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है, VDC फुल लोड, डीसी आउटपुट वोल्टेज, दिस इज डीसी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस विद व्हाट? विद इंक्रीज इन लोड करंट, ओके, with increase in load current, IDC। चलिए परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फॉर्मूले में सब कुछ डाल देते हैं जो हमारे पास था। सो परसेंटेज रेगुलेशन फाइनली इट इज कमिंग एज बाकी घबराना नहीं है, इतना कुछ पढ़ा दिया सर ने आज एक ही दिन में, ये वो, ठीक है, पॉइंट्स हैं तो हैं। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल, एक एक चीज डिराइव करके दी है। जस्ट रिवाइज इट, जस्ट रीड इट लाइक अ नॉवल, एंजॉय द टॉपिक, जस्ट एंजॉय इट। एक बार रीड करो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, पढ़ के थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। सौरभ बेटा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, either you can skip the topic or you have to study, करना तो पड़ेगा, मैंने भी तो पढ़ा है ना, मैंने भी तो याद किया हुआ है, ठीक है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। या फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो मेरे साथ हुआ था, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, तुम भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। और यार मैं तुम्हें बताऊंगा स्टोरी मेरे साथ क्या किया था, तुम हंसी आएगी तो तुम्हें अनलॉक पढ़ा दूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा क्या क्या किया था हम लोगों के साथ। चलो देखते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन निकालेंगे पहले। परसेंटेज रेगुलेशन इज VDC नो लोड। व्हाट वाज VDC नो लोड? VM बाई पाई माइनस VDC फुल लोड। VDC फुल लोड क्या निकाला हमने? VDC नो लोड माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज IDC इंटू R, अपॉन VDC फुल लोड। अब नीचे वाले को मैं लिख रहा हूं IDC इंटू R, ठीक है, ये भी तो VDC फुल लोड ही था, इंटू 100। सो यू कैन सी परसेंटेज रेगुलेशन इज कमिंग एज VM बाई पाई माइनस VM बाई पाई, कट गया, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया, IDC IDC कट गया, क्या बचा? R अपॉन
RL इंटू 100। ये आया बेटा अपने पास परसेंटेज रेगुलेशन, जहां पे R क्या है, RF प्लस RSW। अब तुम एक लॉजिकली बात सोचो बेटा, अगर डायोड और वाइंडिंग आइडियल है, मतलब ना इसकी रेजिस्टेंस ना इसकी रेजिस्टेंस, तो भाई करंट लोड जितना मर्जी चेंज हो, करंट जितनी मर्जी चेंज हो, V इनपुट विल बी V डीसी फुल लोड बराबर। ये शॉर्ट हो जाएगा, ये यहां पे भी कोई ड्रॉप नहीं आएगा। सो बेसिकली इनकी रेजिस्टेंस की वजह से जब लोड बदलता है तो करंट बदलती है, जब करंट बदलती है तो ड्रॉप बदलता है, जब ड्रॉप बदलता है तो VDC फुल लोड बदलता है। तभी तुम देखो, इफ R इज 0 परसेंटेज रेगुलेशन इज 0। इफ R इज 0 परसेंटेज रेगुलेशन इज 0, कोई रेगुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी लिख लेते हैं, ये बात थोड़ी सी लिख लेते हैं। परसेंटेज रेगुलेशन becomes zero if diode and secondary winding are ideal. Next point. Therefore, ideally, regulation factor should be 0। आप यहां से भी देख सकते हो, अगर रेगुलेशन फैक्टर 0 है तो VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड 0 है, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है। Therefore, ideally regulation factor should be 0, that is DC output voltage should not change with load current। ठीक है, ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट दैट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। ठीक है, दैट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। Thevenin's इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप सबको पता है, जिन्होंने सब, मैंने नेटवर्क नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ोगे बेटा तो देख लोगे। अब तो मैंने कहा ही है कि पैरेलली नेटवर्क आपको करना है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा अभी तक नोडल मेश तक, अब दोबारा से पहले पन्ने पे जाना है जहां से मैंने चार्ज स्टार्ट किया हुआ है। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी। देन वी वेंट फॉर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, सोर्सेज, देन ब्रांच, नोड, मेश, नोडल, सॉरी केवीएल केसीएल पहले बीच में आएगा, फिर ये सब टॉपिक आएंगे। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, टू पोर्ट थ्योरम, साइनसॉइडल थ्योरम्स, ट्रांजिट एंड सो ऑन। तो आपको नेटवर्क पूरा पढ़ना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बाद में बता दूंगा। अभी आप जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप सिंपल देखो, आई कैन डायरेक्टली राइट इट फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। मुझे सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, पीछे से डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूं। VDC फुल लोड कितना आया, मतलब अगर लोड लगा होगा, इफ लोड इज कनेक्टेड, अगर लोड लगा हुआ है तो लोड की VDC फुल लोड कितना आ रहा है, VM बाई पाई माइनस IDC इंटू R। VM बाई पाई माइनस IDC इंटू R, जब ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो DC फुल लोड की वैल्यू ये है। भाई यहां से तो थेवेनिन मॉडल बन तो गया। ये इक्वेशन मुझे DC के केस में, नहीं तो थेवेनिन मॉडल बन नहीं पाएगा। दिमाग लगाना थोड़ा, अगर DC ना लूं तो थेवेनिन मॉडल, ये ज्यादा मतलब बता रहा हूं, समझ में आया ठीक है, नहीं जो छोड़ देना, इतना दिमाग तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर मैं DC मॉडल ना लूं तो थेवेनिन मॉडल बन नहीं पाएगा। रीजन ये है, डायोड लगा हुआ है, तुम लोड हटा के थेवेनिन मॉडल बना रहे हो। डायोड लगा हुआ तो थेवेनिन मॉडल बना पाओगे? डायोड लगा हुआ थेवेनिन मॉडल बना पाओगे? तुम्हें सिखाया था मैंने कि अगर डायोड लगा हुआ मैं थेवेनिन मॉडल नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज इट्स अ नॉन लीनियर एलिमेंट, आई विल नॉट बी एबल टू। लेकिन मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैंने DC लगाया है।
तो डायोड अपना शॉर्ट, डायोड है ही नहीं वहां पे, डायोड है ही नहीं वहां पे, इसलिए मैंने किया है, इसलिए डीसी वाला केस लिया पूरा। तो ये वैसे ही मैं बना रहा हूँ, हल्का सा कहीं जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, वरना जरूरत पड़ती नहीं है, बट आई हैव टू गिव यू एवरीथिंग। ये आ गया अपना बेटा लोड, जो यहाँ लोड लगा था। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है VDC फुल लोड, मतलब ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रही है और यहां से करंट जा रही है IDC, दिस इज इक्वल टू सम वोल्टेज Vm by pi, ओके, सम वोल्टेज Vm by pi, इसमें से माइनस कर दो IDC इंटू आर। तो इस टोटल वोल्टेज में से IDCR माइनस कर दो तो ये बन गया ना सर्किट। एंड इफ यू लुक एट दिस सर्किट, इजंट इट थेवेनिन मॉडल, वेयर दिस इज VTH, दिस इज RTH, दिस इज योर थेवेनिन मॉडल। इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि वो इक्वेशन बनी थी, उसके साथ साथ बगल साथ में बन जाता है, तो सरदर्दी नहीं करनी पड़ती है, सरदर्दी नहीं करनी पड़ती है। जिसको कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल जस्ट रिमेंबर द थेवेनिन मॉडल। वैसे मैंने समझा दिया पूरा, पर हो सकता है ढंग से ना याद हो चीजें, तो जस्ट रिमेंबर द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक, ठीक है। अब बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। With this, our half wave rectifier will be over, and then we will be entering into the full wave rectifier. But before that, quickly एक बार recap मारते हैं। We started with the half wave rectifier. हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव क्रॉस करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में वेव स्टॉप करेगी। दैट्स व्हाई आई विल बी गेटिंग अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, half wave rectified voltage like this, and it's a half wave rectifier circuit. Then I said, let's calculate few values. सबसे पहले हमने इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट निकाली, फिर हमने इसकी डीसी वैल्यू निकाली, फिर हमने इसकी आरएमएस वैल्यू निकाली, फिर हमने कहा कि जो आउटपुट करंट में एसी कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे रिपल फैक्टर चाहिए था। फिर मैंने रिपल फैक्टर निकाला, फिर मैंने फॉर्म फैक्टर निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर मैंने डायोड के बारे में बातचीत स्टार्ट करी, तो डायोड की मैंने जो है डीसी वोल्टेज निकाली। फिर मैंने कहा डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। फिर डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में बात करी। फिर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी देखी, फिर हम लोगों ने रेगुलेशन फैक्टर देखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने थेवेनिन मॉडल देखा टुवर्ड्स द एंड। दैट्स इट। तो बेटा पढ़ने में लगता है बहुत ज्यादा पढ़ा दिया सर ने आज, पर ज्यादा नहीं पढ़ाया है। अगर आप इसको आज ही रिवाइज कर लेंगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही याद होंगी अभी, और कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है सारी, I'll put it in the form of the table towards the end of the class, and even I'll give you a typed version also if you need it. But at the end I'll give you all the information कि rectification efficiency कितनी है, regulation factor कितना, form factor कितना है, ripple factor कितना है, सारा टेबल में डाल के दूंगा। अभी सिर्फ समझना है आपको रिवीजन करते टाइम। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। रात को मिलता हूँ 9 बजे, अगर आपने यूट्यूब वाली क्लास करनी है, नहीं तो कल 2 बजे कर ले। बाय बाय फिर। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। सॉरी गलती, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, सब चलता है, इतनी टेंशन ना लेनी होती है। चल बाय।